right, Prime Minister Narendra Modi is attending international Dussehra celebrations in Himachal's Kullu. We are getting you live updates from there. These are the visuals that we are getting for you from Himachal Pradesh, where the Prime Minister is attending the Dussehra festivities. Remember, earlier in the day, he inaugurated infrastructure projects. And back then, Chief Minister Jairam Thakur, Union Minister Anurag Thakur and BJP President were also present at the inauguration ceremony of AIIMS Bilaspur. And the visuals on your screens are of the Kullu Dussehra celebrations in the state of Himachal Pradesh. Remember, this Kullu Dussehra festival assumes a lot of significance in the state. It's a long phase of festivities. It kicks off from today and will go on till 11th of October. And it's taking place at Dhalpur ground in Kullu. And this is... it has been going on for several years. It's a traditional festivities and a lot of people gathered at Kullu for these festivities, and this is the first time ever that Prime Minister Modi is participating in these Kullu Dussehra festivities. Gurpreet joins us for more on this. Gurpreet, the visuals speak for themselves. Massive gathering in Kullu for the Dussehra festivities. PM's presence adds a lot of gravitas to it because given the festivities and the elections, it is a very important event that marks the political calendar and the cultural calendar as well. Well, we can see there is a huge excitement among Himachal Pradesh people. We have seen our Prime Minister, he has just come at about 3:30 here, and as this Rath Yatra, that is one of the important customs for starting this Dussehra festival, international festival here in Kullu. And today, when Prime Minister has come here, a lot of excitement has been seen among the people of Himachal Pradesh. This day is the first time in the history of this Dussehra festival, our Prime Minister of India, he has come and participated. And we have seen continuously more than half an hour of Prime Minister stayed here, and as the custom which is being followed by this Rath Yatra, because one of the deities is supposed to give a signal to start this Rath Yatra. And we have seen the Prime Minister of India, he has just come down from the dais. He saw the blessing of Raghunath Maharaj, and after that, when the signal was given by one of the deities, they just Rath Yatra had already started. And after starting this Rath Yatra, we have seen the Prime Minister, he waved all the people before leaving this venue. So today the visit of Prime Minister in Himachal Pradesh has a lot of significance, lot of meaning at this point of time. If you can see from the political side, this was the starting of election was said. We all know in November, after November, there will be election which is going to be happen in Himachal Pradesh. And if we can talk about this specifically Dussehra. All right, Gurpreet, my apologies. There's some issue in the audio link. We'll try and fix that. I'm also joined by Amit on the broadcast. Amit, प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में है और काफ़ी अहम जो उनके आइटिनरी है, उनके जो प्लान्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो, चाहे वो कुल्लू दशहरा पार्टिसिपेशन उन फेस्टिविटीज़ में शामिल होना, और ये सब एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है, चाहे वो राजनीति की तरफ से देखा जाए या फिर त्यौहार की तरफ से देखा जाए. क्या ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की हिमाचल विजिट के बारे में? ये देखिए, मुझे लगता है ये मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के अगर आप देखिए तो कामकाज के तरीके का है एक तरह से शोकेस भी है कि कैसे एक तरफ वो करीब 3,500 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी शुरुआत की बिलासपुर में, तो दूसरी तरफ जो दशहरा का जो फेस्टिवल है उसमें शामिल हो रहा है. और कुल्लू का जो दशहरा है वो बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही ज्यादा फेमस के तौर पर आप उसको कह सकते हैं कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है और लोग वहां से कई दुनिया के कई देशों के लोग उसमें शामिल होते हैं. 5 से 11 अक्टूबर तक वहां पर मिल रहा है. कुल्लू के जो ढालपुर मैदान है वहां मनाया जा रहा है ये उत्सव है. और इस उत्सव में सबसे मजेदार चीज क्या है कि जो हिमाचल की जो घाटी है वहां से करीब 300 से अधिक जो देवी देवता है उनकी पूजा होती है. और इसमें सबसे पहले दिन, जैसे कि आज का जो दिन है उसमें पालकियों में लेके उन देवी देवताओं को लेकर निकलते हैं लोग. तो एक तरह की सवारी चलती है, देवताओं की सवारी चलती है. और ये सारे लोग जो है
वो पालकियों के को लेकर रघुनाथ मंदिर जी के जो अपने वहां पर समर्पित करते हैं। और एक उस पूरे में आप देखिए तो कई जो कलर है, जो एक एक फेस्टिवल का जो कलर है, और प्रधानमंत्री खुद हमेशा उनकी सबसे बड़ी चीज ये रही है कि धार्मिक जो चीजें होती है, क्योंकि उनका ये हमेशा मानना है कि अगर व्यक्ति कोई है, भले ही वो राजनीति में हो, लेकिन उसकी जो धर्म के प्रति निष्ठा है या धर्म जो वो निभाता है, उसको अलग नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री को जब मौका मिलता है तो वो केदारनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, या जहां भी किसी देश में जाते हैं तो वहां पर जो धार्मिक स्थल है तो उसको उसकी उसकी पूजा अर्चना में वो कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो आज भी ये एक बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, जो टीवी पर की ऐतिहासिक जो कुल्लू दशहरा में जो एक दिव्य रथ यात्रा होता है, देवी देवताओं की जो भव्यता होती है, उसका साक्षी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ये पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री जो है कोई वो कुल्लू के एक दशहरा समारोह में शामिल हो रहे हैं। चुनाव है, नो डाउट, चुनाव से आप उनको तमाम परियोजनाओं से चुनाव को भी जोड़ेंगे, चुनावी दौरा होता ही है, और प्रधानमंत्री के हर चीज का एक अपने मायने है। लेकिन दशहरा के इसके जो कलर्स है और जो एक जो रंग आप देख रहे हैं, तो तमाम पूरी दुनिया में जो फेमस दशहरा, कुल्लू का दशहरा है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल है। जो एक तरह से आप कहिएगा कि जो रथ यात्रा निकल रहे हैं, तमाम जो उस पूरे इलाके के तमाम देवी देवता जो हैं उनको इसमें शामिल एक तरह से करते हैं लोग, उनको अपनी पालकियों में बैठा कर लेकर चलते हैं। तो एक यात्रा जैसी देवी देवताओं की यात्रा है। तो इसी लिहाज से ये अपने आप में खास है कि अन्य देवी देवता भी इसमें शामिल होते हैं, और दुनिया के कई जगहों से लोग इसमें आते हैं जो सिर्फ ये कुल्लू दशहरा देखने के लिए। तो खास मौका है, और खास तौर पे आप देखिए, खास रंग है, खास फेस्टिवल है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक है। जी जी अमित, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमें बताया कि कुल्लू में किस तरीके से दशहरा मनाया जाता है और उसकी अहमियत क्या है। लेकिन एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, आज एक एम्स की भी नींव रखी गई, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसको नींव रखी गई बिलासपुर में, उसके बारे में क्या? क्योंकि कई बार बजट में भी इसकी बात होती है कि इतने इतने राज्यों में इतने इतने एम्स बनाए जाएंगे, तो ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमेशा से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी आवाजें उठती रही है। तो जो नया एम्स है जिसकी नींव रखी गई है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? रखी गई, बल्कि आज उसका उद्घाटन हुआ है। और सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में इसका शिलान्यास किया था, और खुद प्रधानमंत्री हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जिन चीजों को अगर कोई किसी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होना है तो उसका एक डेडलाइन तय कीजिए कि कब तक ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि बिना डेडलाइन के आप काम नहीं कर सकते, और सालों से हम लोगों ने देखा है कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है कई साल तक लटके रहे। कोई सड़क बन रहा है या पुल बन रहा है तो 15 साल 20 साल लगते हैं, लेकिन मोदी सरकार में एक 2 से 3 साल या 4 साल 5 साल के भीतर प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो ये एक बड़े बात थी, एक बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में देखिए कि चाहे बिहार से हो, हिमाचल से हो, पहाड़ आसपास के तमाम लोग, दूर दराज के लोग आते थे दिल्ली में एम्स का। और ये भी फैसला 2004 वाले जब वाजपेयी जी की सरकार है उस दौरान हुआ था कि देश भर में एम्स को फैलाना है, और देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि लोगों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, ताकि लोग सिर्फ इलाज कराने के लिए इतने दूर से दिल्ली ना आए। तो इसके तहत किया गया था। तो 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, नींव रखी गई थी, उसको आज समर्पित किया है। और ये एक 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का बना हुआ है। ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है। आप कह सकते हैं कि इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, 64 आईसीयू बेड के साथ 750 बेड शामिल है। तो ये अस्पताल 247 एकड़ में फैला हुआ है। 24 आवर्स इसमें आपातकालीन है, जो इमरजेंसी होती है, डायलिसिस सुविधाएं हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सिटी स्कैन, एमआरआई आदि जैसी आधुनिक जो डायग्नोस्टिक मशीनें हैं वो इसमें है। इसके अलावा अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से ये पूरा बना हुआ है। और इसमें खास करके अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम जातीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है। तो आप कह सकते हैं कि काजा, सलूनी, केलांग जैसे जो दुर्गम जनजाति है, जो अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं, उनको स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब आप समझिए कि एम्स बनने से फायदा क्या है कि दुर्गम जो पहाड़ों में, जो वहाँ पे हिमाचल की पहाड़ियों में जो जनजाति है, वहां तक सुविधाएं पहुंचा जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं। और इसके अलावा इस अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए
60 छात्रों को एडमिशन मिलेगा। तो आप समझिए कि जैसे दिल्ली में एम्स के इसमें जो वहाँ पर स्वास्थ्य तो मिलता ही है, जी। लेकिन वहाँ पे पढ़ाई भी होती है। उसी तरह से वहाँ के एम्स में भी डॉक्टर्स बनेंगे, नर्स की पढ़ाई की जाएगी। तो अपने आप में खुद हिमाचल प्रदेश को सशक्त करने के लिए, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए एक एम्स जो है उसकी आज से शुरुआत हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये अहम जानकारी देने के लिए। राइट।